ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ سکیں۔ میں سڑک کنارے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جبکہ میرا شوہر میرے قریب ہی بیٹھا بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا منہ نوچ ڈالوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتا ہے۔ چلو اب جلدی سے رونا بند کرو، ہمیں گھر بھی چلنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ میں تم جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو؟ تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی تھی، تب تم نے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری ہر بات مانو گی، اور اب جب میں تمہیں ایک چھوٹی سی رسم کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا، کیا تم اسے چھوٹی سی رسم کہتے ہو؟ تم چاہ رہے ہو کہ میں تمہارے باپ کو خوش کروں اور اس کے ساتھ؟ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بات کرتے ہوئے مجھے خود ہی شرم آ گئی تھی، لیکن میرے شوہر کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ اب تو تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، چلو اب جلدی سے اٹھو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے سے میں بہت محبت کرتی تھی۔ اسلام آباد جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تب اس کی اسی خوبصورتی نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ تب میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں کسی اور علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ تو میری برادری سے بھی نہیں ہے۔ تب میرے سر پر صرف اور صرف محبت کا بھوت سوار تھا۔ اس دن میرا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ میں اپنا کمرہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے چند لڑکے نظر آئے۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ان کے قریب جانے سے ہچکچا رہی تھی، مگر ساتھ کھڑی لڑکی کہنے لگی، جا کر ان کی بات سننی ہی پڑے گی ورنہ یہ پورا سال تمہیں تنگ کرتے رہیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور اس ٹولے کی طرف چلی گئی۔ احتشام بھی اسی ٹولے میں ہی کھڑا تھا اور مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی میری نظریں اس کے نظروں سے ملی اور وہیں پر ہی میں اپنا دل ہار بیٹھی۔ یہ نہیں تھا کہ میں بہت دل پھینک لڑکی تھی، میں نے آج تک کبھی بھی کسی لڑکے کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی لڑکے کے بارے میں سوچا تھا، مگر احتشام میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے بار بار اس کی طرف کھینچتی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف چلی جاتی اور پھر اس سے باتیں کرنے کے موقع ڈھونڈتی تھی۔ میری دوستیں اکثر اس وجہ سے میرا مذاق بناتی تھی، مگر مجھے ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے صرف اور صرف اپنے محبوب کا دیدار کرنا ہوتا تھا۔ میں معمول کی طرح اپنی کلاس لے رہی تھی کہ اچانک یہ احتشام وہاں پر چلا آیا اور سر کے کہنے لگا کہ مجھے نورین سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر پوری کلاس او کے نعرے لگانے لگی۔ پروفیسر بھی اسے دیکھ کر مذاق میں کہنے لگے، احتشام بیٹا خیریت تو ہے؟ احتشام کھل کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، سر پہلے تو خیریت ہی تھی، لیکن اب ان سے ملنے کے بعد لگتا ہے کہ حالت خراب ہو جائے گی۔ اس نے سر کو آنکھ مارتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی اس قدر بے باکی پر میں شرما گئی۔ اس کے علاوہ مجھے خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے محلے کی لڑکی جو کہ میری کلاس فیلو بھی تھی وہ میرے گھر میں شکایت لگا دے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے کلاس سے باہر نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا، یوں چھپ چھپ کر دیکھنے کا کیا فائدہ؟ اگر تم نے مجھے دیکھنا ہی ہوتا ہے تو سامنے آ کر بھی دیکھا کرو، تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ کوئی لڑکی میرے عشق میں اس قدر ڈوبی ہوئی ہے۔ احتشام کی بات سن کر میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے اس سب کے بارے میں پتا ہوگا۔ میرا حیران چہرہ دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اب اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اس حرکت کے بارے میں نہ صرف میں جانتا ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری یونیورسٹی بھی جانتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جلدی سے نرم پڑا اور کہنے لگا، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کا کوئی بھی لڑکا تمہیں تنگ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے تمہیں چھیڑنے کی کوشش کی تو تم مجھے بتانا، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں نے خوف سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت واقعی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، تمہاری خوبصورت آنکھیں چمکتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ اور یہی وہ دن تھا جب میری پہلی بار احتشام سے بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو ہماری ملاقاتیں بھی ہونے لگی۔ اکثر ہی میں بہانے سے احتشام سے ملنے چلی جاتی تھی، مگر ایک دن میری کزن نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے گھر جا کے شکایت لگا دی کہ یہ کسی لڑکے سے ملتی جلتی چکر چلا رہی ہے۔
जब अब्बा को इस बारे में पता चला तो वो अब्बा ने मुझे बहुत पीटा। अब्बा को ज्यादा गुस्सा इस वजह से था क्योंकि मेरे कजन ने उन्हें गलत लड़के के बारे में बताया था। एहतिशाम की शक्ल सूरत से उसे यही लगा था कि वो गिलगित से ताल्लुक रखता है, और बाकी पहली बीवी चूंकि गिलगित से थी उसकी, और इससे अब्बा को धोखा दिया था, इसलिए अब्बा गिलगितियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। जब मैंने अब्बा को बताया कि वो गिलगित का नहीं बल्कि चित्राल का है तो वो थोड़ा सा नर्म पड़े, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी अरूज पर ही था। वो मुझे कहने लगे कि आज के बाद मैं इस बारे में कुछ भी ना सुनूं। अगर मुझे पता चला कि तुम दोबारा इस लड़के से मिलने जा रही हो या इससे बातचीत कर रही हो तो मैं तुम्हारी शादी इसी दिन ही कर दूंगा। अब्बा की बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हैं। मैं इस लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी और इस लड़के के बगैर जिंदगी गुजारना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इसके अलावा किसी और लड़के का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं अब्बा के पाँव पड़ गई और उनकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी कि अब्बा, अल्लाह के लिए मेरे साथ इस तरह का जुल्म न कीजिएगा। मेरी बात सुनकर अब्बा ने मुंह फेर लिया और मुझे कहने लगे कि तुमको ये अच्छा काम नहीं कर रही कि जिसके लिए मैं तुम्हारा साथ दूं। और जहां तक शादी की बात है तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम बरादरी से बाहर शादी नहीं करते, और वो लड़का भी चित्राल का है। चित्राल के लोगों के तो मजहब के बारे में भी हमें पता नहीं। वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, उनकी अजीबोगरीब रस्में होती हैं। हम जैसे लोग इन लोगों के साथ नहीं रह सकते। अब्बा की बात सुनकर मैं तेजी से नफी में सर हिलाने लगी और अब्बा को कहा कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। मगर अब्बा मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब्बा को अंदाजा हो गया था कि मैं संभलने वाली नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी में जाना बंद कर दिया और मेरे हाथों से मोबाइल भी छीन लिया। मैं बहुत ज्यादा बेबस हो गई थी, अजीब सी जहनी अजियत का शिकार थी। समझ नहीं आ रहा था कि इस सब के कैसे निकलूं। कोई भी मेरी बात समझने और सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अम्मा से बात करती तो अम्मा डांट कर खामोश करवा देती। इसके अलावा बहन भाई से ही बात नहीं करती थी। सब ने मुझे एक अछूती समझ लिया था। एक दिन अपने दोस्त से मोबाइल लिया और शाम को कॉल की। मेरी आवाज सुनकर वो बेचैन हो गया और बेचैनी से कहने लगा, कहाँ हो यार, तुम इतने दिनों से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारी वजह से कितना परेशान हूँ। इसके लहजे में अपने लिए परेशानी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस तरह से रोता देखकर एहतिशाम मुझे डांटने लगा और कहने लगा, यूँ रोना बंद करो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। और फिर मैंने उसे अब्बा के बारे में बता दिया। मेरी बातें सुनकर चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गया और मुझे कहने लगा, जैसे तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं, इससे तो साफ मुझे लग रहा है कि वो मेरे साथ कभी किसी सूरत शादी नहीं होने देंगे। एहतिशाम की बात सुनकर मैं तड़प उठी और उसे कहने लगी, अल्लाह के लिए मेरे साथ इस तरह की बातें मत करो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एहतिशाम ने मुझे समझाया और कहा कि तुम्हें रोने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस एक बार मुझसे मिलने के लिए आओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एहतिशाम की बात सुनकर मैंने उसे कहा कि अम्मा कभी भी मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देगी। तुमने जो करना है वहीं से बैठकर करना है। एहतिशाम झुंझला गया और कहने लगा, यहाँ से बैठकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम बस किसी भी तरह से मुझे आकर मिलो। और फिर उसने मुझे जगह के बारे में भी बता दिया। एहतिशाम की बात सुनकर मैं शशोपंज में मुब्तला हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और फिर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला कर लिया। अगले दिन अपनी दोस्त के साथ छुप कर मैं एहतिशाम से मिलने के लिए चली गई। इस दिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने वालिदैन को आखिरी बार देख रही हूँ और इसके बाद कभी भी मैं अपने वालिदैन को देख ही नहीं पाऊंगी। मैंने इनसे मार्केट का बहाना लगाया था। अभी मैं मार्केट के करीब ही पहुंची थी कि अचानक ही काली गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। कोई गाड़ी से उतरा और खींच कर मुझे गाड़ी के अंदर डाल दिया। जब मैं कुछ सोचने समझने के काबिल हुई तो देखा करीब ही एहतिशाम बैठा हुआ था। वो मुस्कुराती हुई नजरों से मेरी तरफ देख रहा था, जबकि मेरे जहन में अपनी कजन की चीख गूंज रही थी जो मुझे गाड़ी में बैठा देखकर खौफ से चिल्ला उठी थी। मैंने जोर से एहतिशाम के सीने पर हाथ मारा। उससे कहा कि ये क्या तरीका है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी गलत हरकत की है? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मैंने किसी भी किस्म की गलत हरकत नहीं की है, बल्कि मैंने तो अपना हक छीना है। मैंने खौफजदा नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखा और उससे पूछा कि अब तुम क्या करने वाली हो? वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि अब मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। और फिर उसने मुझसे निकाह किया और मुझे हमेशा के लिए अपने चित्राल ले गया। मैं उसके साथ जाने से इनकार कर रही थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने वालिदैन को धोखा दूं। मगर उसने मुझे इतना बेबस कर दिया और उसने इतने माहिराना तरीके से मेरी ब्रेन वॉशिंग की कि मुझे लगने लगा अगर मुझे एहतिशाम ना मिला तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और फिर मैं इसके साथ चित्राल आ गई। चित्राल का माहौल मेरी सोच से भी ज़्यादा अजीबोगरीब था। यहाँ के लोग बहुत ही बेशरम और बेहया थे। माँ बाप को ज़रा भी फिक्र नहीं होती थी। इनकी बेटियां लड़कों के साथ खुलेआम अजीबोगरीब हरकतें करती थी और वो इस सब को मामूली सी चीज़ समझते थे, जबकि हमारे यहाँ तो
इन की वजह से कत्ल भी हो जाते थे। कभी कभार मैं बेयकीनी से एहतशाम से पूछती तो वो मेरी बातें सुनकर झुंझला जाता और मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहता, तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है ना, यहाँ पर यही सब कुछ होता है और यही सब कुछ होता रहेगा। तुम्हारे बार बार इस चीज का जिक्र करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। मेहरबानी करो, खुद पर भी एहसान करो और मुझ पर भी एहसान करो। वो डांट कर मुझे खामोश करवा देता, मगर मेरी हैरानगी दूर नहीं होती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ के लोग इस कदर गंदे हैं। एक दो बार मेरे देवर ने मेरे साथ फ्री होने की कोशिश की, मगर मैंने इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और इसके बाद वो खौफजदा हो गया और मेरे करीब कभी भी नहीं आया। मैंने अपने शौहर को भी इसके बारे में बता दिया था, लेकिन मेरी बात को एहतशाम पर कोई भी असर नहीं हुआ था। उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे ये बहुत बड़ी बात ना हो बल्कि एक मामूली सी बात हो। अब मुझे इसकी गैरत का अंदाजा हुआ था कि वो किस कदर बेगैरत इंसान है। ये तो कुछ भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी हकीकत मेरे सामने आ गई। मुझे पता चला कि यहाँ के लोगों को अपनी बीवियों से जरा भी कोई लगाव नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि यहाँ के लोग तो दूसरों की बीवियों में दिलचस्पी लेते हैं और यहाँ ये मामूल था। यहाँ पर तो मेरा ससुर भी अपनी बहू को नहीं छोड़ता था। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। मैं जल्दी से अपने शौहर के पास गई और उसके सामने वावेला मचा दिया। मेरा शौहर मिजारियत से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो बोला तो उसका लहजा बहुत सख्त था। उसने मुझे कहा कि जब मैं तुमसे शादी कर रहा था तब तुमने इनकार क्यों नहीं किया? जब तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें अच्छी तरह से बताया था कि यहाँ के लोगों की रस्में बहुत अजीबोगरीब होती हैं, तो तुम्हें तभी मुझे छोड़ देना चाहिए था। अब मेरे साथ ये ड्रामे ना लगाओ। शौहर की बात सुनकर चंद लम्हे के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर सकता है। मैंने उसके हाथ पकड़े और उसे कहा कि मैं वो सब कुछ मोहब्बत की खातिर कर रही थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस दिया और कहने लगा, मोहब्बत तो तुमसे तुम्हारे वालिदैन भी करते थे, लेकिन तुमने उनके साथ क्या किया? तुमने उन्हें धोखा दे दिया और एक ऐसे आदमी का हाथ थाम लिया जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती। तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। उसकी बातें मुझे किसी खंजर की तरह अपने दिल में लगती हुई महसूस हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस हद तक सच्चाई का मुजाहरा कर सकता है। उसने मुझे रोते हुए छोड़ा और खुद कमरे से बाहर निकल गया। 2 दिन तक वो घर से बाहर ही रहा। ये 2 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, वैसे वैसे मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मैं भाग नहीं सकती थी क्योंकि मेरी सास मुझ पर नजर रखकर बैठी हुई थी। इस दौरान एक और चीज जो मैंने नोट की थी वो ये थी कि मेरा ससुर घर से न जाने क्यों कहाँ पर चला गया था। जब मैंने अपनी नंद से इस बारे में बात की तो मेरी नंद मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जब तक वक्त करीब नहीं आ जाता तब तक वो घर नहीं आ सकते और ना ही वो आपको देख सकते हैं। मैं बेयकीनी से अपनी नन की तरफ देखने लगी। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात पर हो रहा था कि ये रस्म यहाँ पर बहुत ही मामूली थी और हर इंसान को ही इस बारे में पता था। यहाँ तक कि गली के छोटे से छोटे बच्चे को भी इस बारे में खबर थी। और अब तो सबको ये भी पता चल गया था कि अगली बारी किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है। गांव की औरतें मुझे रोक रोक कर मुबारकबाद देती जैसे बहुत नेक काम करने जा रही हूँ या अभी हज अदा करके आई हूँ। रोज घर आकर मैं रोती पीटती थी, चिल्लाती थी। अपने बाप की बातें मुझे याद आती थी। मैंने अपने साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती करती थी। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं इस दलदल से कैसे बाहर निकलूं, कैसे इन सारी चीजों पर काबू पाऊं और कैसे अपनी जिंदगी को दोबारा से संवारूं। एक दिन मैंने अपने कजन को कॉल की। मेरा ये कजन बचपन का दोस्त भी था। पहली ही बेल पर उसने कॉल उठा ली। उसकी आवाज सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। चंद लम्हों तक तो वो भी खामोश हो गया। मैं जानती थी वो मुझे पहचान गया है। थोड़ी देर बाद वो बोला तो उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ थी। उसने मुझसे पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी बात सुनकर मैंने उससे माफी मांगी और उसे कहा कि मैं किसी के साथ भी कुछ गलत करना नहीं चाहती थी। मैं मोहब्बत के हाथों इतनी मजबूर हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला, और ना सिर्फ तुम लोगों के साथ बल्कि अपने साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती कर बैठी। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ उठा और मुझे कहने लगा कि ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम ठीक तो हो, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं पहुंची। उसके लहजे में मेरे लिए अभी तक फिक्रमंदी थी और ये बात मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं महफूज हूँ, मगर मेरी इज्जत महफूज नहीं। इससे पहले कि मैं मजीद कोई बात करती, अचानक ही मेरी सास ने मेरे हाथों से मोबाइल छीन लिया और मुझे डांटते हुए कहने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मोबाइल इस्तेमाल ना किया करो। अगर तुम्हारे शौहर को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सास की बात सुनकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और इससे माजरत करते हुए कहा, अम्मा जी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। दरअसल मैं अपनी एक दोस्त को बहुत याद कर रही थी, इसीलिए उसे कॉल मिला ली। उसने मुझे कहा कि चलो अब जल्दी से अपने कमरे में दफा हो जाओ, तुम्हारा शौहर आने ही वाला होगा। बहुत ही ज्यादा खराब लहजे में वो मुझसे बात कर रही थी। मुझे ये भी पता था कि अभी तक कॉल चल रही है। मुझे अपनी बेइज्जती पर बहुत रोना आ रहा था, मगर ये सब कुछ मेरा गुजरते जा रही थी।
अपना ही बोया हुआ तो था जो मैं वक्त काट रही थी। दिन भी तेजी से कट रहे थे। हफ्ते का दिन भी आन पहुंचा। इतवार वाले दिन मुझे इसके सामने पेश होना था। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। एक ही रात में सहने बैठी हुई थी। मेरी तबीयत एकदम से खराब होने लगी थी। मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी। न जाने मेरे दिल में क्या आया। मैं घर से निकलकर भागने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। मैं रास्ते में अचानक ठोकर लगी। सर जमीन से टकराया और बेहोश हो गई। सुबह आंख खुली तो देखा सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। उठकर भागने ही लगी कि सामने बैठे शौहर पर नजर पड़ी। डर के रुक गई। वो इस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घर की तरफ लेकर जाने लगा। मैंने उसे अपना हाथ बाजू छुड़वाने की बहुत कोशिश की क्योंकि आज ही वो दिन था। वो मुझे बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। मैं इसकी मिन्नतें कर रही थी कि अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मगर वो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो मुझे लेकर घर पहुंच गया। सामने ही वो इंसान खड़ा गंदी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसे देखकर मुझे घिन महसूस हो रही थी। मैंने दोबारा से अपने शौहर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने मुझे धक्का दे दिया इससे पहले कि मुझे अपने साथ लेकर अंदर चला जाता। अपने पीछे मुझे अपने कजन की आवाज सुनाई थी। कजन की आवाज सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे वाकई में मेरा कजन ही खड़ा था। वो मुस्कुराती हुई नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने मेरे शौहर को कहा कि मैं तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर वो मेरे शौहर और ससुर को लेकर बैठक में चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो तीनों बाहर निकले। मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाकें दे दी। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मेरे कजन ने मेरा हाथ पकड़ा और खामोशी से मुझे लेकर वहां से चला गया। मैं गाड़ी में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे खामोश करवाया और मुझे कहा, शुक्र करो तुम्हारी जिल्लत भरी जिंदगी से जान छूट गई है। मैंने उसे कहा कि यहाँ पर मुझे एक छत तो मुहैया थी, लेकिन अब तो मेरे पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। उसने मुझे कहा कि घर में तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या वो मुझसे नाराज नहीं है? मैंने उससे बेयकीनी से पूछा। उसने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहा कि तुम्हारे वालिदैन को यही लगता है कि तुम्हें किसी ने अगवा कर लिया है और वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे तुम्हारी कजन ने सारी बात बता दी थी। मैं उसकी बात सुनकर एकदम ही खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा मुझे कहा कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में कबूल कर सकती हो क्या? ये हैरत का दूसरा झटका था जो मुझे लग रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा कभी मुझसे इस तरह का सवाल करेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद था जब उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और मैंने ये बात कही थी कि मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ गुजारना चाहता है। तब उसकी बात सुनकर मैं बुरा बना गई थी। ना सिर्फ मैंने उसे अच्छा खासा डांटा था, बल्कि उसके साथ साथ मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ भी मारा था। मैं खुद हैरान थी कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। जवाबन उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि खामोशी से मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा कि तुम मेरे साथ जितना मर्जी बुरा सलूक कर लो, क्यों ना, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगी। हमेशा ही मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं तुम्हारे पास मौजूद होऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मैंने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। मैंने उसका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया था। उसके बावजूद भी वो अभी मुझे अपनाना चाहता था। उसकी बात सुनकर मैं खुलकर मुस्कुरा तो दी थी। वो यकीनन खुशियां मेरी मुंतज़िर थी जिसका मैं हमेशा से इंतजार करती आई थी। मुझे पता चल गया था कि मेरी आजमाइश अब खत्म हो गई है।